Welcome to One Day Study, Standard 9, Chapter 2, History and Evaluation of Computers. Dear students, लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सम कंप्यूटर मेमोरीज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर के अंदर फर्मवेयर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So today's we discuss about history and evaluation of computer. So let's discuss about point covered in this session. हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री की बात करें तो कंप्यूटर जब से डेवलपमेंट हुआ तब से लेके नाउ डेज. देन नेक्स्ट वन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर. Then next one, generation of computers based on software, types of software. Then popular computer. Then today we discuss about history of computer. जो फर्स्ट वन कंप्यूटर था वो एबेकस था, जो हम स्कूल के अंदर और प्राइमरी स्कूल के अंदर बहुत देखने के लिए मिलता था. Abacus is used to perform simple calculation. Simple calculation, that means addition or multiplication. 1642 Blaise Pascal developed the first basic calculation which would do one limited jobs. That means multitasking पे वर्क नहीं कर रहा था. जब सिंपल कंप्यूटर था तब 1690 की बात करें तो लेबनीज डेवलप मशीन दैट कुड परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन बात करें चार्ल्स बेबेज की तो फादर ऑफ कंप्यूटर. इन 1822 डिजाइन एंड बिल्ड a model called a difference engine. His invention could perform calculation without human intervention. That means human intervention के अलावा जो कंप्यूटर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. देन is known as Charles Babbage. You know who is Charles Babbage? Babbage as the father of modern day computer. Then 1833 Babbage designed a machine called analytical engine. 1946 J. Presper Eckert and John W. Mauchly invented a giant ENIAC machine. That means ENIAC machine at the University of Pennsylvania. The ENIAC stand for Electronical, Numerical, Integrated and Calculation. Was the first machine to use large number of vacuum tube. जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यानी कि 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब थी. वैक्यूम ट्यूब दैट मीन्स फिलामेंट लैम्प. जैसे हमारे घर पे ओल्ड वर्जन के टीवीज थे उसके अंदर फिलामेंट ट्यूब आती थी. नाउअडेज एलसीडी और एलईडी हो गया तो ये फिलामेंट ट्यूब जो थी वो उसकी जगह पे सम टेक्नोलॉजी आई और एलसीडी और एलईडी सेट हो गया. देन चार्ल्स बेबेज की बात करें तो 1822 के अंदर डिजाइन किया था बिल्ट इन मॉडल कॉल्ड अ डिफरेंस इंजन. इज इन्वेंटेड could perform calculation without human intervention. Then generation of computer based on hardware. Computers may be classified into a number of generation. Generation की बात करें तो first generation, second generation, fourth generation and 4GL, fourth generation. Then the classification may be based on the hardware technologies used in building a computer or based on its applications, software used first. जब जनरेशन की बात करें तो सब नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई उसके हिसाब से जो सॉफ्टवेयर का नया नया फंडामेंटल लॉन्च हुआ, नया नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, that is based on computer generation. We will discuss about classification of computer.
considering various hardware technologies. The first generation of computer 1945 to 55. The first generation of computer started with ENIAC. It was then followed by the IBM ने लॉन्च किया था. Universal Automatic Computer built by Mosley and Icahn in 1951. This machine could perform a business data processing. Simply business data processing, that means data for example one place to another places पे ट्रांसफर करना है तो पंच कार्ड जैसे कार्ड आता था जिसके अंदर डेटा राइट होता था और नियर अबाउट 1 MB केबी के अंदर डेटा स्टोर होता था. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज अ वैक्यूम ट्यूब, दैट मीन्स फिलामेंट लैंप का यूज होता था. उससे डिसएडवांटेजेस क्या था, 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब थी तो हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था. बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर अ वेरी लार्ज रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी, slow in input output and suffered with heat and maintenance problem. तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम था, हीट का प्रॉब्लम था और 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब थी जिसकी प्रोसेस यानी कि इनपुट और आउटपुट प्रोसेस भी स्लो थी. नाउअडेज कंप्यूटर की बात करें तो देन इज नोन एज वैक्यूम ट्यूब और इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ये पूरे से पूरा एक रूम के अंदर सेट होता था. नाउअडेज कंप्यूटर जो है वो पूरा एक टेबल के अंदर यानी कि पॉकेट के अंदर भी आ गया और वियरेबल कंप्यूटर भी आ गया. तो ये सब टेक्नोलॉजीज है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 to 65. To overcome difficulties faced in the first generation computer, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम था, वैक्यूम ट्यूब का, हीटिंग का, इनपुट आउटपुट प्रोसेस का. उसकी जगह पे नया डेवलपमेंट हुआ सेकंड जनरेशन ड्यू टू यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब. रिप्लेसिंग अ ट्रांजिस्टर वेर यूज इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. जो वैक्यूम ट्यूब थी उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर आ गए. Transistor is a small component made of semiconductor materials. With transistor, the problem of heat was minimized and computer size was reduced. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो वो साइज के अंदर बड़ा था, एक रूम के अंदर सेट होता था. उसकी जगह पे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया तो उसकी साइज क्या हो गई, कम हो गई. और हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी डिस्ट्रॉय यानी कि रिमूव हो गया. The computers now could perform operation comparatively faster. The storage capacity was also improved. जो कंप्यूटर था वो फास्टर हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी थी वो केबी के अंदर थी वो एमबी के अंदर आ गई. इज नोन एज ट्रांजिस्टर. ये सब ट्रांजिस्टर है. तो ये क्या हुआ, जो पावर सप्लाई था वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया. Then third generation of computer 1965 to 80. Third generation computer use integrated circuit, that means IC instead of transistor. Transistor की जगह पे IC आ गई. This circuit are fixed on silicon chip. ये जो circuit थी वो fix आ गई. A silicon chip consumes less than 1/8 of an inch square on which many electronic components like diodes, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एक्सेट्रा. जो ये सर्किट थी उसके अंदर सेट ऑफ डायोड्स थे, सेट ऑफ ट्रांजिस्टर थे, कैपेसिटर थे. इज नोन एज ट्रांजिस्टर. यहाँ पे देखो ये उसका पॉइंट है वो मदरबोर्ड के अंदर अटैच हो जाता है. द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 to 89. Fourth generation computer use a large scale ICs and VLSI, that means very large scale integration circuit. Because of these computers were the first smaller and reliable. The fourth generation computers soon evolved and as attractive general purpose machine that allows a rapid application development.
This generation computers become more user friendly. User friendly that means पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, वो यूजर फ्रेंडली नहीं था. यूजर फ्रेंडली दैट मीन्स हम कंप्यूटर को इजीली मेंटेन कर सके, इज नॉन एज यूजर फ्रेंडली. नाउअडेज आप कंप्यूटर यूज करते हो, ठीक है, तो अगर आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है तो कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा इज नॉन एज माई कंप्यूटर, इज नॉन एज रिसाइकल बिन, इज नॉन एज नेटवर्क सिंबल, इज नॉन एज यूजर फ्रेंडली. देख के ही हमें पता चल जाता है. This generation computer become more user friendly, easier to use and can use widely for personal applications. Personal application के लिए भी हम use कर लेते हैं. And such machines were called personal computer, that means PCs, for example IBM PC and Apple. Then fifth generation computer 1989 to till that, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है. Fifth generation computers are further made smarter in terms of processing speed, user friendliness and connectivity to network. These computers are portable and sophisticated. That means portable यानी कि one place to another place हमें मूवमेंट करना है कंप्यूटर का तो हम इजीली कर सकते थे. पहली जनरेशन का कंप्यूटर था यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, तो उसकी साइज थी वो बड़ी थी. अगर हमें मूव करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि उसके अंदर थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब थी. अगर कोई भी डैमेज होता है तो वैक्यूम ट्यूब क्या हो जाती थी, डैमेज हो जाती थी. These computers are portable, sophisticated, powerful desktops, notebooks, variety of storage mechanisms such as optical disc and advanced software technologies such as distributed operating system and artificial intelligence are key features of the fifth generation computers. IBM notebooks, Pentium PCs and Param 1000 are example of the computer. हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है इज नॉन एज परम सुपर कंप्यूटर जो इंडिया का है. द जनरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब. देन साइज में क्या था, बिगर था. प्रोसेस स्लोअर थी एंड लेस इफिशिएंसी थी. और डेटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज होता था. और कंप्यूटर का यूज कॉमर्शियली यूज नहीं होता था. उसका मॉडल है IBM जो कि IBM ने फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया था. सेकंड जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया. जो स्लोअर स्पीड स्लोअर थी उसकी जगह पे फास्टर हो गया. साइज के अंदर रेड्यूस साइज हो गई. एंड उसका मॉडल जो एग्जांपल था कंप्यूटर का IBM 1620. देन थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह पे IC आ गया, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट. स्टोरेज की बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड स्मॉलर. साइज की बात करें तो स्मॉलर हो गए. वेल सूट फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन. कॉमर्शियल एप्लीकेशन पे भी चल रहा है कंप्यूटर. नॉन एज मिनी कंप्यूटर IBM 360, PDP-8, PDP-11 द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. देन फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसकी जगह पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, वैक्यूम ट्यूब थी और ट्रांजिस्टर था, उसकी जगह पे VLI एंड LSI आ गया. यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और स्पीड थी वो फास्टर हो गई. कंप्यूटर क्या हो गया, स्मॉल इन साइज हो गया. देन उसके मॉडल है IBM PC, Apple II, सुपर कंप्यूटर सच एज क्रे, सीरीज कंप्यूटर. ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है. नाउअडेज फिफ्थ जनरेशन portable and sophisticated, superior in processing speed, user friendliness and connectivity to network, support AI that means artificial intelligence technique. उसकी बात करें तो IBM notebook, Pentium PCs, Param 10000 ये सब उसके एग्जाम्पल है कंप्यूटर के. नाउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो भी कंप्यूटर है इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर का जो भी मैकेनिज्म है और कंप्यूटर का जो भी जनरेशन है मेन पार्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जस्ट लाइक 5 हार्डवेयर जनरेशन देयर आर सॉफ्टवेयर जनरेशन. टू द वेरी फर्स्ट जनरेशन इज मशीन लेवल लैंग्वेज. जो मशीन लेवल लैंग्वेज थी दैट कैन अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली कंप्यूटर. और मशीन लैंग्वेज विच इज
two-state language having a symbol 0 and 1. This is also called a binary language. जो nowadays कंप्यूटर है वो भी बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है. हमारी नेचुरल लैंग्वेज वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है. कोई भी हम डेटा इनपुट करते हैं तो फर्स्ट वन कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज, उसके बाद स्टोरेज पार्टीशन के अंदर उसका पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है. टू अवॉइड डिफिकल्टीज वर्किंग विद द मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी डिफिकल्टी थी क्योंकि हमें मशीन लैंग्वेज पता नहीं है. हमें नेचुरल लैंग्वेज यानी कि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके अंदर हमें इजीली पता चलता है और मशीन लैंग्वेज के अंदर हमें इजीली पता नहीं चलता है. फॉर एग्जांपल मैं इसे बताऊँ 111 दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, ये मशीन लैंग्वेज को पता है, हमें पता नहीं है. Assembly language was introduced. Assembly language use of mnemonic code or symbol. Mnemonic code यानी कि symbol. The assembly language is considered as a second generation computer language. Assembly language थी वो second generation computer language थी. Then the third generation language as a subset of English language were desired. These third generation language are also known as higher level language to make machine automatically translate the content written in higher level language. Special utilities called translator such as compiler and interpreter is used. हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो उसके अंदर हायर लेवल लैंग्वेज का यूज होता था यानी कि लाइक इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसके अंदर क्या डिसएडवांटेज था, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. तो उसके लिए ट्रांसलेटर है. ट्रांसलेटर दैट मीन्स जो पूरे से पूरा हमने वर्ड टाइप किया, लेटर टाइप किया, उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता था. द थर्ड जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम एनवायरमेंट्स कॉल्ड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर इंट्रोड्यूस. द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज reduce the programming effort by just specifying what to do instead of how to do. Then SQL, that means structure query language, is an example of the fourth generation programming language. Then fifth generation language are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. Some example of applications that require such support is fault finding, voice recognition, and instruction detection. Such tasks are carried out in transparent fashion from users in order to avoid complexity and to facilitate user-friendly interaction with the systems. The fifth generation programming language use AI that means artificial intelligence techniques to meet their goal. Then types of software की बात करें तो software play a vital role in a computer system by creating a bridge between the computer hardware and computer users. Software क्या है, मेन पार्ट है इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, आपको कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर के साथ, तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे. वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर पार्ट आता है, मॉनिटर है. तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है तो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो सकता, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है. देन देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, without which computer cannot work. Software is organized collection of data and instruction given to a computer in order to perform a given task. We have seen some component of computer software. Types of software की बात करें तो फर्स्ट वन है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है, manages computer hardware and act as an interface between computer hardware and software developed for a business application. Then system software provide important functionalities like booting computer properly, managing memory,
channeling data from secondary memory to primary memory, managing printers and other resources. For example, system software is an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है उसको मैनेज करना और जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड है उसको मैनेज करना. Then the translator program mentioned in this chapter are also example of system software. जो translator है, compiler or interpreter is known as system software. Some translator program transform whole source code written in a programming language. जो सम ट्रांसलेटर है, फॉर एग्जांपल हम कंपाइलर की बात करें या इंटरप्रेटर की बात करें तो ये 1 by 1 और सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ कन्वर्ट करते हैं. द सोर्स लैंग्वेज इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, द टारगेट लैंग्वेज mainly machine or binary language at once. The transform, that means translate code, is later execute obtain the desired result. These programs are called compiler. Some translator programs transform the source code into the target code in line by line and produce the result simultaneously is known as interpreter. कंपाइलर का काम क्या है, एक साथ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देगी बाइनरी लैंग्वेज या तो मशीन लैंग्वेज के अंदर. और इंटरप्रेटर का वर्क क्या है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर एरर है तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या करेगा कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करेगा. Then application software. Application software is a set of instructions that provide application specific functionalities to a user. These functionalities may be general purpose such as word processing, data very business need, or may be very narrow such as an organization payroll program that generate a pay slip in company's format on a company's printed stationery. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो फॉर एग्जांपल वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लेटर टाइप कर सकते हैं और प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर भी सेट कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी हम उसके अंदर देख सकते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. तो मेन पार्ट है कंप्यूटर कम्युनिकेशन का, यूजर एंड कंप्यूटर का कम्युनिकेशन का. पॉपुलर कंप्यूटर की बात करें तो सो फार वी हैव डिस्कस दैट द कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन बाइनरी डिजिट 0 and 1 even if the instruction are given in any generation programming language. Ultimately they are to be represented into sequence of digit 0 and 1. हम कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज इनपुट करें बट कंप्यूटर का वर्क क्या है, फर्स्ट वन कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज. The computers are also known as digital computer. Analog computer use a linear combination of voltage, amplitude or currents of frequency or phase instead of digit. जो एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर. अब एनालॉग कंप्यूटर का फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल या डीजल. तो वहाँ पे जो हमारा फ्यूल होता है पेट्रोल या डीजल का, तो वहाँ पे सिग्नलिंग थ्रू हमें एक डिजिट डिस्प्ले होता है. फॉर एग्जांपल हम 100 रुपीज का फ्यूल करवाते हैं तो वहाँ पे जैसे हमारा फ्यूल स्टार्ट होता है तब से एनालॉग कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट कर देता है. और डिजिटल कंप्यूटर है यानी कि डिजिटल जो कंपोनेंट है उसका काम क्या है, डिजिटल डेटा डिस्प्ले करना, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल. यहाँ पे फर्स्ट वन कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर. These computers are most popular computer system. They are easier to use and more affordable. They are normally used by individuals, their routine business activities. Then second one है laptop. Laptop computers are portable and lightweight computers with the thin screen. और लैपटॉप की बात करें तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर भी है, अगर हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करना है लैपटॉप का तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं.
They are also called notebook computers because उसके साथ जो नोटबुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। सेम लाइक अवर नोटबुक। नोटबुक यानी कि हमारी जो बुक है वो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। वैसे हम लैपटॉप को भी हमारे साथ मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हैंडहेल्ड कंप्यूटर। Handheld computer, also known as personal digital assistant, that means PDS. There are small in computer comparison with the laptop, can be carried anywhere. कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें तो ये जो लैपटॉप था वो साइज के अंदर बड़ा था, और हैंडहेल्ड कंप्यूटर क्या है, साइज के अंदर छोटा है, तो हम पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं। देन टैबलेट कंप्यूटर। A tablet computer is a portable and mobile computing tool. It is a mobile computer like a bigger mobile phone with a touch screen facilities. टैबलेट कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का भी वर्क परफॉर्म करता है और हमारे सेल्यूलर यानी कि सेल फोन का भी वर्क परफॉर्म कर सकता है। These categories are for example a flat tablet PC, and second one है a convertible tablet PC. Then wearable computers. Wearable computers are also known as a body-worn computers. These are tiny computing devices. The wireless computers are small and lightweight as they need to be carried on human body. ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेट हो सकता है, यानी कि हम वियर भी कर सकते हैं कंप्यूटर को। So thank you.